7th canto 10th chapter and 4th verse. Na anyata te akhila guru ghateta karunatmanaha yasta shisha ashaste nasabhritya savaivanik. Otherwise, O my Lord, O Supreme Instructor of the entire world, you are so kind to your devotee that you could not induce him to do something unbeneficial for him. On the other hand, one who desires some material benefit in exchange of devotion service cannot be a pure devotee. Indeed, he is no better than a merchant who wants profit in exchange for service. So, Prahlad Maharaj का पोजीशन बहुत यूनिक है. वो भगवान के शुद्ध भक्त है. That is not ordinary. ठीक है? Yesterday night we developed this point. Actually, Shuddha Bhakti means Sarvadharman Parityaja. That is Shuddha Bhakti. Shuddha Bhakti does only thing. Maam ekam sharanam vrajai. Only take shelter of Krishna. Rest is rejected. All other kind of occupational duties, all other kind of engagement, which has nothing to do with service to Krishna, why you are doing it? Why you are doing it? Correct? So that is not pure devotion. So Prahlad Maharaj is very clear. Narasimhadeva is extremely happy with his prayers. He is very pleased. In front of all the devatas, he is saying out of affection, ask what you want. I want to give. I want to give you. I am very happy with you. Who can give something? Somebody who has. For us, we ourselves are short. How we can give? Suppose हमसे कोई पूछने आए, भाई 10 रुपये दे सकते हो? बुरा लगता है कि मेरे को ही कम पड़ रहे हैं पैसे. तेरे को क्या देंगे? कह रहे? But Krishna is Purna. Is complete. ऐसा नहीं है कि भगवान को थोड़ी कमी हो रही है, थोड़ा पैसा कम हो गया. नहीं. That's not the point. He owns the whole universe. So then a devotee is also taken care by Krishna. Yogakshema mahameham ananyas chintayanto maham ye jana paryupasate tesham nitya viyuktanam yogakshema mahameham. है ना? That is the famous shloka, LIC का श्लोक. So what is the meaning? उस श्लोक का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई चीज़ कमी है, भगवान दे देते हैं. जो आपके पास है उसको मेंटेन करते हैं. तो भक्त को कुछ मांगने की जरूरत है. अगर वो भक्त है तो जितना चाहिए उसके लिए भगवान दे रहे हैं, और जो उसके पास है उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है. तो भक्त को तो मांगने का मतलब बनता ही नहीं है. ऑलरेडी कृष्ण ने गारंटी दिया है और पर्सनली करते हैं. अहम योगक्षेम महामी अहम. वो फेमस श्लोक है ना? फेमस स्टोरी मालूम है? कौन सा स्टोरी? यमुनाचार्य का. वंस यमुनाचार्य, लॉन्ग टाइम, सो लेट अस रिपीट. सो वंस व्हाट हैपेंड, यमुनाचार्य ने क्या बोला अपने उसको? ही टोल्ड, he was writing the commentary of Bhagavatam. So when he saw Krishna is saying Yogakshema Mahami Aham, I preserve what he has and I give him what he needs. So in writing purport उन्होंने सोचा कि मे बी ये गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता. भगवान क्यों आएंगे? वो तो बिजी है अपनी लीला में. So he said he will make arrangement. वो किसी को भेज देंगे, अब अरेंजमेंट कर देंगे. बट खुद आने का उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया. And then he went to take a bath. So when he came back, अब जब नहा रहे हैं तो suddenly in his house 2 small boys came carrying ghee, carrying sugar, all जो घर में जितनी कमी थी चीज़ों की सब आ गई. ठीक है? And सब दे दिया. So then when she came, the wife she saw 2 very beautiful boys. भाई क्या है भाई, ये सब कौन किसने? अरे तो बोला तुम कुछ खा के जाओ. नहीं आएगा, मारेगा, इतना मारा है देखो. And they kept the luggage and they ran away. So then when Prabhupada said, generally wife became very upset. So when Yamunacharya came and said, what happened to you? Now you have become like this. Previously you were not doing like this. Now you started beating children also. What is all this going on? So why will I beat children? Arey no. 2 small boys came. They told you beated them and sent all the items for the house. Then he understood. So the beating was his correcting Krishna's words. Beating का मतलब we should not correct Krishna's word. It is pain to Krishna. We should not change his words. And Krishna proved personally he maintains. तो इधर तो हो गया कि भक्त को कृष्णा पर्सनली मेंटेन करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं बोल रहा हूँ इसको कितना बार रिपीट कर दिया है.
हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जितना आपके काबिल नहीं हो उसके ज़्यादा भगवान आपको देते हैं। जैसे घर में माँ बाप क्या करते हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा गौर से सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या करते हैं माँ बाप? बहुत स्नेह से प्यार के आपको जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा दे के रखते हैं, करेक्ट? ध्यान से आपका ख्याल रखते हैं। उसके बावजूद भी बच्चा अगर भगवान को प्रतीक नहीं है, वो बच्चा पाखंडी है, करेक्ट? होना चाहिए ना उसको, अरे भगवान मैं इसके, आप इतने कृपालु हैं, आप इतने कृपालु हैं, मेरे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट करा हुआ है, सब कुछ आपने मेरे लिए रखा हुआ है, आप इतना कृपालु। ऐसा मेडिटेशन होना चाहिए आदमी को, हमेशा इस चीज़ को सोच के खुश रहना चाहिए। आप इतना दया करते हैं मेरे पे, इतना, हर क्षण वो ये सोचता है, हर क्षण पैर भी टूट जाए तब भी सोचता है अरे भगवान आपकी क्या दया है मेरे पे। और अगर ऐसा सोचता है तो वैकुंठ जाने के लायक बन जाता है। हमारा तो सिर पैर नहीं टूट रहा है, लेकिन तब भी क्या सोचने का, भगवान की कृपा है, करें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्षण भगवान का आभारी होना चाहिए। क्या प्रार्थना करोगे नहीं तो आप तो भगवान को श्राप दोगे हर समय, अरे मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिया, उसको इतना दे दिया है, अपने को क्या समझता है वो, इतना बड़ा पावर दे दिया आपने उसको, मेरे को डांटता रहता है हर दिन। तो ये आप कब कैसे भगवान से प्रार्थना करोगे फिर? ऐसा नहीं, इसमें प्रार्थना नहीं होती, ये प्लेटफॉर्म प्रार्थना होती है जब भगवान, क्योंकि मन को संतुष्ट रखना चाहिए। तब आपका प्रॉब्लम है इंद्रियों को वश में करना और भगवान के धाम जाना, भगवत धाम जाना। इसके लिए मन को संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर मन असंतुष्ट होगा तो आप भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे, करेक्ट? पर्टिकुलरली पुजारी को बहुत संतुष्ट रहना चाहिए, बिकॉज भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। एक्चुअली कोई मेरे को पूछ रहा था कैसे मालूम ये कि भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। मैंने कहा ऐसा है, प्रभुपद का प्रणाम मंत्र करके रखते हैं, स्वीकार तो होगा ही 100%, लेकिन कितना खुश करेगा वो हमारी भक्ति पे डिपेंड करता है, उसमें भी वैरायटी है। एक बारी क्या हुआ था, प्रभुपद जी के गुरु का डिसअपीयरेंस डे था, तो प्रभुपद जी ने खुद खाना बनाया उससे और अपने गुरु को ऑफर किया, खिचड़ी बनाया था। तो जब डिवोटी लोग उसको खाए वो फेंट हो गए, चित्त हो गए थे, मतलब जैसा ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर फोड़ दिया एक दाने को खा के। वो इतना इंटेंस, आप समझ रहे हैं ना, जैसे कीर्तन गाता है। अब कभी कभी हम भाव में गाते हैं, लोग हिल जाते हैं, कभी कभी गाते हैं अलग अलग होता नहीं होता, तो एक लेवल नहीं है। प्रभुपाद जी भी एक क्लास सुनते हो, मैं भी कुछ बक रहा हूँ, तो बहुत फ़र्क है। प्रभुपाद जी भी कीर्तन करते हैं, हम भी कीर्तन, क्या तो 24 घंटा टेस्ट है, प्योर गोल्ड का प्योर गोल्ड होता है। किसी का भी कीर्तन आप 24 घंटे लगा लो, सिर दर्द हो जाएगा लोगों को। पूरा इस्कॉन का हजारों टेम्पल में 24 घंटा प्रभुपाद जी का कीर्तन चलता है, तब भी लोग थकता नहीं है ना। उस अगले दिन भी वो कीर्तन हो, अगले दिन भी वो कीर्तन। कितना साल हो गया सबको, 20 साल 15 साल सुन सुन के अभी भी बोर नहीं हुए, कह रहे किसी और आदमी का है यार, अब उसको चेंज कर, दूसरा लगा, क्योंकि वो प्योर गोल्ड हो, प्योर गोल्ड है वो। उसको एडवर्टाइज करने का जो, वो खुद ही प्योर गोल्ड है। जैसे सूरज को एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ अफल्जेंट है। तो प्रॉपर जी का आप देखिए कीर्तन है सेल्फ अफल्जेंट। तो आप भी कीर्तन करते हैं, लेकिन वो स्वीकार है भगवान को, भगवान आपको कृपालु है, स्वीकार करेंगे जरूर, लेकिन उसका डिग्री वेरी करेगा। तो इसलिए हमेशा पुजारी को बहुत संतुष्ट रहना चाहिए, बिकॉज भगवान को जो ऑफरिंग करा ना, खुश मन होना चाहिए, भगवान आप बहुत कृपालु हैं। हमेशा ये चीज़ बहुत सोचना, बहुत ज़रूरी है सोचना। किसी भी स्थिति में हो हम भगवान को आभारी रहना चाहिए, नहीं तो भक्ति शुरू नहीं होगा। भगवान आपने कृपा है, आपकी कृपा से मेरा है। देखो कितना लोग है वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, इतना शरीर दर्द कर रहा है। इस्कॉन मूवमेंट में भी कुछ भक्त है जो बहुत शरीर का मुश्किल में, करेक्ट? मैं भी गया था जू में, देखा था एक डिवोटी था, बेल्ट लगा के बैठा हुआ था कीर्तन के टाइम, पूरा उसका पता आप जानते हो कि बहुत दर्द था उसको, बेल्ट लगा के बैठा हुआ था। तो कितने लोगों को कितनी तरह से मुश्किल होती है, लेकिन आप तो स्वस्थ शरीर में हो ना, बहुत खुशी होना चाहिए, बहुत। और ये भी कोई चोट लग जाए तो हमारे भगवान आपकी कृपा है, हर क्षण भगवान को थैंक करता रहना चाहिए, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू कृष्ण, कह रहे। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा लगता है कि भगवान हमको भूल चुके, भूले नहीं है, बहुत अलर्ट है, बहुत एक एक क्षण आपको देख रहे हो, बहुत अलर्ट है। लेकिन लगता क्या है, भगवान हमको भूल गए, वो बिजी हैं यशोदा माँ के साथ, हमसे और हमको लगता है ऐसा। एक्चुअली उनको हमसे क्या मतलब है, लगता है,
लेकिन ऐसा नहीं है, हर क्षण आपको देख रहे हैं, हर क्षण बहुत गौर से। जैसे बच्चे को माँ देखती रहती है हर क्षण, वैसे भगवान भी बहुत स्नेह से आपको एक एक क्षण क्या कर रहे हो देख रहे हैं। तो जब भगवान आपको एक एक क्षण जो कर रहे हो देख रहे हैं, तो हमको संतुष्ट क्यों नहीं रहना चाहिए? और क्या चाहिए हमको? इससे ज़्यादा चीज़ क्या चाहिए आपको भाई? भगवान की नज़र आप पे है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? है ना, इससे बड़ा चीज़ कोई चाहिए? नहीं नहीं नहीं। तो बस थोड़ा भगवान पे इस चीज़ पे आभारी रहो और भगवान के आदेश का पालन करो, आपको खुशी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या है, वन साइडेड लव है और हम उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे। जब आप रिकग्नाइज करने लगोगे तो डेफिनेटली आप भी रेसिप्रोकेट करोगे, करेक्ट? देन व्हेन यू स्टार्ट रेसिप्रोकेटिंग, जैसे बच्चा है, जब उसको लगता है उसके माँ बाप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, करेक्ट? कभी ये प्रॉब्लम होती है, जिनकी जो भी माँ हैं उनको हम बोलते हैं जब करो, बोलते हैं बैठ के जब करने लगते हैं, बच्चा रोने लगता है, बिकॉज उसको नेग्लेक्ट नहीं होने का, है ना? बच्चे को टॉलरेट नहीं होता कि उसकी माँ नेग्लेक्ट करे उसको। जैसे हरे कृष्ण, हाँ, वो नेग्लेक्ट टॉलरेट नहीं कर सकता, उसको लगता है माँ उसको इग्नोर कर रही है। नहीं, कभी इग्नोर नहीं करता। सेम वे कृष्णा डज नॉट इग्नोर, एंड कृष्णा इज 24 आवर्स लुकिंग एट यू विद अटेंशन, विद लव, ठीक है? सो वी शुड हैव दैट एटीट्यूड. But then now something very interesting came. So Yogaksharam Vahamyam is there. Krishna is maintaining and taking care of you. But at this situation we are not pure. Yesterday night ये बहुत अच्छा point. तो ये क्या होता है, कोई भी सेवा आप करेंगे ना, आपको भगवान दर्शन देते हैं, मदद करते हैं। आप सोचो नहीं मैं इसका काबिल नहीं हूँ, बैठ जाओ, बस बैठे रहो। आप सोचो नहीं भाई मेरे को भगवान का सेवा करना है, मैं आगे जाता हूँ, आप भगवान आपको एनर्जी देंगे, आप भगवान आपको बुद्धि देंगे, सब कुछ देंगे। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। कोई भी यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश है, आप इसके लिए आगे निकलो, आपको सारी शक्ति भगवान पीछे आ जाती है, सारी शक्ति आपके पीछे आ जाती है। तो सेम वे भक्त को एक्चुअली, भक्त भगवान से कुछ मांग नहीं सकता, वो भक्त नहीं है, वो धंधा कर रहा है। तब भी ये तो लिखा है ना इधर, जब नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बोलते हैं आपको क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं आपसे धंधा नहीं कर रहा, आपका सेवक हूँ, मैं तो खुशी से सेवा किया आपका। बट देन वेरी नाइस, यस्टरडे नाइट वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। बट अगर हम शुद्ध नहीं भी हैं, कोई भी हमसे शुद्ध नहीं है भी, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, धीरे 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 क्या होगा, भगवान आपकी सेवा स्वीकार करना शुरू करेंगे। क्यों भगवान आपकी सेवा स्वीकार करते हैं? आपके लिए बहुत स्नेह है, इसलिए। आप समझ रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो हम, आप कुछ भी नहीं दे सकते, थोड़ा पत्र दे दो, थोड़ा फूल दे दो। क्यों भगवान ने छोटी चीज बोलते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं बहुत सेठ है, उनको पत्र पुष्प नहीं देना चाहिए, उनको 56 भोग देना चाहिए। इनफैक्ट अमेरिका में प्रभुपाद जी मजाक करते थे, आप लोग इतने सेठ हो, इतने सेठ हो, सारा ऑफरिंग 56 भोग होना चाहिए। कर सकते हैं ना, पैसे का तो प्रॉब्लम नहीं है उधर, लेकिन इंडिया में डिफिकल्ट है, मंदिर बंद हो जाएंगे अगर 56 भोग लगाना होगा 3 टाइम, नहीं हो पाएगा हमसे। So then Krishna accepts whatever we can do, Krishna accepts, and by accepting that Krishna enhances our pure devotion, enhances pure devotion. Krishna accepts. Just as घर में देखिए छोटा बच्चा है, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब, भी जाके डिस्टर्ब में, हाँ ठीक है ये लो टॉफी। Why father accepts? Because he knows he should cultivate relation with me for his own good. So for our own good we should cultivate relation to Krishna. Okay? And then Krishna is very kind, he'll accept this offering of yours, and then our spiritual advancement starts. So we cannot actually love anybody because our tendency is to lust. First thing we'll try to love Krishna. लोग बोलते हैं ना लव लव लव, बड़ा स्टोरी बोलते हैं, किसी को लव करना नहीं आता अभी, बिकॉज अभी हमारे दिल में कांक्षा है, हम किसी को भी देखते हैं उसको हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, किसी को मदद करने का हमारा दिल में मन नहीं है। सच है, सत्य है। डूबता आदमी कोई पास जाओगे उसको भी डुबा देता है, डूबते आदमी के दूर रहने का, करेक्ट? तो जो इंद्रिय भोग में डूब रहा है उसके पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको भी डुबा देगा। तो क्या करने का, थोड़ा सा डिस्टेंस रखने का, और वी ट्रेन द पर्सन कि क्या उसके दिल में इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान का सेवा करेगा। जब भगवान का सेवा करने आप लगेंगे तो क्या होगा, आपको अभी सेवा करना नहीं आता, आपको खाली दूसरे से बेनिफिट करना आता है। जब सेवा करने क्या कर रहे हैं आप, कुछ तो भक्ति होगा, 0.0001% अभी भक्ति होता है हमारा, 99.999 भक्ति नहीं है, इंद्रिय भोग है। कृष्णा वो छोटा सा स्वीकार कर लेता है। एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे आप किसी को 100 आम दे दीजिए,
100 आम में से 99 आम सड़े हुए हैं, आदमी उल्टी टोकरी उठा के सिर में फेंक देगा, आपका नहीं लेगा। कह रहे भगवान का दिल इतना बड़ा है, वो आपका वो जो अच्छा है उसको ले लेते हैं और स्वीकार, खुशी से स्वीकार कर लेता है। तो उससे क्या होता है, तो हम भी जब भगवान की सेवा करने जाते हैं, हमारे हजारों अवगुण हैं, उसमें से भी कुछ तो था ना, कोई सिंसियरिटी थी हल्का सा, तो हो सकता है आप भगवान का प्लेट ध्यान से धोए होंगे, या आप भगवान का प्लेट रखा कहीं दिल में, भगवान मैं तो भक्त नहीं हूँ, आप स्वीकार कर लीजिए। तो थोड़ा सा भी जो आपका भक्ति है, भगवान उसको देख के स्वीकार कर लेता है। आप समझ रहे? जो महान व्यक्ति होता है वो दूसरे के अवगुण नहीं देखता, गुण देखता है। और जो घटिया आदमी होता है वो खाली दूसरों के अवगुण में मेडिटेट करता है। इससे आप समझ सकते हैं कौन महान आदमी है, कौन घटिया आदमी है। क्या फ़र्क है? महान आदमी दूसरे के खाली गुण देखता है और अपने खाली अवगुण देखता है, उसको महान आदमी बोला जाता है। जो घटिया किस्म का आदमी होता है वो अपने खाली गुण देखता है और दूसरों के अवगुण देखता है। 2 मिनट में देख सकते हैं कौन महान आदमी है, कौन घटिया किस्म का आदमी है। करेक्ट? घटिया किस्म का जो आदमी होते हैं वो खाली, उसको बात करने में भी सिर दर्द होता है। क्यों? वो खाली खोटी देख रहा है आपके, और किसी को अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना, जजमेंटल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कह रहे काली खोट देख रहा है आपके, उससे बात करने का मन नहीं करता। उसको अरे तुम्हारे पे तो 1 करोड़ अवगुण है, वो नहीं दिख रहे तुमको? वो नहीं, मैं तो मेरे गुण है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। इसलिए कलयुग क्या बोलते हैं? ये जो हिपोक्रेसी, दिखावे की दुनिया है कलयुग। अपने 1 करोड़ अवगुण को नहीं दिख रहे और दूसरों के गुण अवगुण ही दिख रहे हैं। अपने खाली गुण, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, छोटे छोटे सर्टिफिकेट बना के रखता है अपने मन में, और दूसरों के खाली अवगुण, देखो वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। लेकिन महान आदमी क्या होता है? अपने खाली अवगुण देखता है, दूसरों के गुण देखता है, उसको महान आदमी बोलते हैं। भगवान सबसे महान आदमी है। जब भगवान की सेवा में जाते हैं, भगवान के तो अवगुण है ही नहीं, लेकिन आपकी जहाँ तक हालत है बहुत अवगुण, उनको नहीं देखते। जो एक भी गुण हो उसको पकड़ लेते, अरे नहीं बहुत अच्छा है, बहुत। जैसे माँ अपने बेटे का एक भी अच्छा छोटा क्वालिटी हो उसको बहुत, एक बार याद है कुछ हमारा ये होता है ना, ये वी हैव बच्चों का कंपटीशन होता है, तो उसमें बच्चे थोड़ा नाटक करते हैं, ये सब कुछ कृष्णा वेशा में कुछ करते हैं। तो एक माँ 10 बार ही फ़ोन करके मेरे को, नहीं मेरे को छोटा वीडियो चाहिए मेरे बच्चे का, मेरे को चाहिए वो देखने का, श्री राधा गोविंद की। ठीक है, तो छोटा सी क्वालिटी, दैट इज द नेचर ऑफ कृष्णा। कृष्णा इज सो काइंड, ही सीज अ स्मॉल वंडरफुल क्वालिटी एंड ही ट्राइज टू एनकरेज। हम सबको उत्साह देने की कोशिश करते हैं इस तरह कि हम उनकी सेवा करें। श्रील प्रभुपाद की